students, welcome to second class. This is your English class. So let's start with our lesson chapter number 11, and the chapter name is part become responsible. So let's do the second part, grammar part of this chapter. So that is tense. अब हम इसका grammar part करेंगे and grammar part में क्या है tense. So when we use action word or verb, we use tenses to show different time. So when we use an action word, जब भी हम कोई action word या verb का use करते हैं, we use tense. तो हम किस चीज का use करेंगे? Tense का use करेंगे for showing different time. उस time को show करने के लिए कि वो action जो है वो कब perform हुआ है. For example, I played in the park. First, I played in the park. Next, I play in the park. I played in the park. Next, I play in the park. Third, I will play in the park. So here, आपने 3 सेंटेंस पढ़े. I played in the park. I play in the park. I will play in the park. So यहाँ पर 3 sentences हैं. So there are the different meanings. सब इन तीनों sentence के different meaning है. In the first sentence, the word play tell us that the action is over. First sentence में जब उसने बोला I played in the park, so उस sentence में action is over. Action जो है वो finish हो चुका है, over. In the second sentence, the word play tell us that the action is done usually. और second में वो क्या बता रहा है? I played in the park. Action is done usually. Action जो है वो हो रहा है या फिर होता ही रहता है. Usually daily होता रहता है. मैं खेलता हूँ, play करता हूँ. Next, in the third sentence, the word will play tell us that the action will done in the coming time. और I will play. Will play जो है वो क्या बता रहा है? That it tell us that the action is done in coming time. Action जो होगा वो अभी हुआ नहीं है, ना हो चुका है, ये होगा आने वाले टाइम में. That shows the, ये हमें किस चीज को बताएगा? कमिंग टाइम को बताएगा कि जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा आने वाले समय में. फर्स्ट में एक्शन हो चुका है, सेकंड में एक्शन जो है वो हो रहा है, एंड थर्ड में जो एक्शन है वो होगा. वो भी होना है, अभी हुआ नहीं है, वो कमिंग टाइम में होगा. सो वी कैन से दैट द टेंस इज अ डूइंग वर्ड और अ वर्ब शो द टाइम ऑफ एन एक्शन. So we can say, तो इसलिए हम कह सकते हैं tense is a doing word और doing word और verb show the time of an action. जो क्या है, आपने जो भी action perform किया है उसके टाइम को show करता है. There are 3 types of tenses. यहाँ पे 3 types of tenses है. These 3 types of tenses are following. तो ये जो नीचे tense लिए हैं ये वो वाले tense हैं. First is the past tense. First tense is the past tense. Second is the present tense. Second tense, present tense. Third is the future tense. Third tense कौन सा है? Future. Past में जो हो चुका है that is past. Present, present means जो हो रहा है, जो अभी running पे है that is present. Future means जो होने वाला है. Future means जो होने वाला है. The past tense tell us about an action that is completed when the sentence is spoken. अब past tense में action जो है that is completed. Action is completed. Action complete हो चुका है. जब वो sentence बोला गया वो action जो है वो complete हो चुका है. The present tense tell us about an action that happens regularly. और जो प्रेजेंट टेंस है वो हमें बताता है कि एक्शन जो है वो होगा, हर रोज होगा, रेगुलरली होगा. द फ्यूचर टेंस टेल अस अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द कमिंग टाइम. और फ्यूचर टेंस आपको बताता है द एक्शन दैट हेल्ड इन कमिंग टाइम. आने वाले समय में वो एक्शन होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट
एग्जांपल्स पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हमें बताता है द एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक। हम लोगों ने लास्ट वीक फुटबॉल को प्ले किया था, मीन्स एक्शन हो चुका है, प्लेड। मोस्टली इनमें ईडी ऐड किया जाता है। बी प्लेड। नेक्स्ट, आई रिसीव्ड दिस पार्सल लास्ट वीक। मैंने वो पार्सल लास्ट वीक रिसीव किया था, रिसीव्ड ईडी। आई फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क खत्म कर दिया है, फिनिश्ड ईडी लगा है। संगीता वॉकड होम फ्रॉम द मार्केट। संगीता जो है वो घर से गई है कैसे, वॉक करके, ईडी लगा हुआ है यहाँ पे। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। The simple present tense tell us that an action may be happened usually. अब सिंपल टेंस हमें क्या बताता है, एक्शन जो है वो यूजुअली हो रहा है। सच एज एक्शन कैन बी अ हैबिट। अब जो एक्शन है वो क्या है, मे बी इट्स योर हैबिट, हॉबी एंड डेली इवेंट। वो आपकी हैबिट भी हो सकती है जो आप रेगुलर काम करते हैं, हॉबी भी हो सकती है, डेली इवेंट जो हर रोज करने वाले इवेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं, और समथिंग दैट हैपेंस ऑफन, और जो ऐसे काम जो आप रेगुलर करते हैं। ओके, सो इट कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच इज एन ऑर्डर ऑफ सम इंस्ट्रक्शन। सो इट कुड आल्सो बी यूज्ड एन एक्शन, और ये जो एक्शन है वो ऐसा भी हो सकता है और ऑर्डर में भी हो सकता है जो हम, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, सम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो हम रेगुलर करते हैं, ब्रशिंग का है, प्लेइंग का है, कोई भी एक्शन, या आपकी हॉबी हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, My father visits the church every Sunday. मेरे पापा जो है विजिट करते हैं हर संडे। वो गए नहीं थे ना वो जाएंगे, वो हर संडे जाते हैं, रेगुलर है। सो वी यूज, सो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम हर रोज स्कूल जाते हैं, हम हर रोज जाते हैं स्कूल। I eat my dinner daily. मैं अपना डिनर जो हूँ वो हर रोज खाता हूँ। My mother tells me not to be naughty. और मेरे मम्मा मुझे हमेशा ही कहते हैं कि नोटी मत बनो। So all these sentences, ये जो है या तो आपकी हैबिट्स में है, या रेगुलर कर रहे हैं, या ये आपकी हॉबी है। All these of kind, रेगुलर होने वाले एक्शन, that is your simple present tense. Now नेक्स्ट इज, सो अब देखिए इसमें और भी है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द फैक्ट। ये कुछ फैक्ट्स को भी एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब जो सन है वो ईस्ट से ही राइज होगा। दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है कि सन जो है वो ईस्ट से ही राइज होगा एंड सेट इन द वेस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है एंड सेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। सो ऑल दीज आर सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका? सिंपल फ्यूचर टेंस। सो इन सिंपल फ्यूचर टेंस is used, the simple future tense is used to talk about things which will happen in the coming time. Will happen means ये जो action है ये कब होगा? Coming time, आने वाले समय में होगा। For example, my father will go to London tomorrow.
मेरे पापा लंदन जाएंगे, गए नहीं है, जाएंगे टुमारो, कल जाएंगे मीन्स विल गो। तो इनके साथ क्या ऐड किया गया है, विल। माय फादर विल गो टू लंदन टुमारो। वी विल गिव गिफ्ट ऑन क्रिसमस, वी विल गिव गिफ्ट, तो हम विल गिव। अब यहां पर देखिए विल गो, विल गिव, हम गिफ्ट देंगे, कब देंगे, क्रिसमस पे, अभी दिए नहीं है, क्रिसमस पे गिफ्ट देंगे। वी विल विन द मैच, हम जो मैच को है वो जीतेंगे, अभी जीते नहीं है, जीतेंगे, विल विन। सो आप फ्यूचर टेंस में विल, शैल यूज, विल और शैल का यूज करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में आप एस, एस का यूज करते हैं, एंड पास्ट में ईडी का यूज किया जाता है। ओके, नाउ चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमें फिल करना है। दे डैश आउटसाइड ऑल द डे, दे वो क्या करते हैं, आउटसाइड ऑल द डे, दिन भर, प्लेड। सो द आंसर इज, क्या आंसर आएगा, प्लेड। आंसर क्या आएगा, प्लेड, क्या आएगा, प्लेड। दे प्लेड आउटसाइड ऑल द डे। नेक्स्ट, वी डैश टू स्कूल एवरी डे, हम स्कूल को क्या करेंगे, यस, हर रोज जाएंगे, वी गो टू द स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट इज, प्लीज डैश द बुक्स ऑन द टेबल, प्लीज डैश, यस, प्लीज कीप द बुक्स ऑन द table. Okay students, so these are some examples. So यहाँ पर ये कुछ examples दिए गए हैं जिन्हें हमने किया है। So I hope concept आपको समझ में आएगा। हमने 3 tenses, 3 टाइप के tenses किए हैं। First is your, हमने 3 टाइप के जो tenses किए हैं उनमें से है आपका सिंपल पास्ट टेंस किया, पास्ट मीन जो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका है। प्रेजेंट टेंस मीन जो एक्शन जो है वो या तो रनिंग पे है या रेगुलर होता है। एंड द फ्यूचर टेंस मीन्स जो हो चुका है। फ्यूचर के साथ हम विल लगाएंगे, पास्ट के साथ हम ईडी ऐड करेंगे, एंड प्रेजेंट में आपका सिंपल सेंटेंस आता है। पास्ट में आपके सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ओके, एंड प्रेजेंट में आप सिंगल एस और ईएस और सिंपल सेंटेंसेस को यूज करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।